चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान जो शानदार बढ़िया पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, अख्तियार की गई है, वह सब के लिए प्रशंसा के काबिल है और साथ ही इससे केंद्रीय चुनाव आयोग को भी सबक लेना चाहिए। अगर इसी अंदाज में पूरे भारतवर्ष में चुनाव हों तो माहौल ही कुछ और होगा। एक ही मंच सभी उम्मीदवारों को अपनी बात रखने का मौका जो जिला बार एसोसिएशन की चुनाव करवाने वाली समिति ने, सभी अधिवक्ताओं ने एक बेहतर माहौल बनाया है, ऐसा ही माहौल पूरे देश में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो यह चुनाव करवाने के लिए बैठक हो रही है, इसका शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी निभा रहे रिटर्निंग ऑफिसर सरदार देविंदर सिंह जी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सुनील बिलगा जी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मनीष दीवान जी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पूनम ठाकुर जी और सभी अधिवक्ताओं ने चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों ने किस तरह एक सभ्य और पढ़े लिखे समाज का परिचय दिया, बेहतर वातावरण में अपनी अपनी बात रखी। आप अब जो जनरल मीटिंग आज जिला अदालत में 15 दिसंबर को होने वाले चुनाव के संदर्भ में हुई है, उसमें किस किस उम्मीदवार ने क्या क्या कहा, क्या क्या प्लानिंग रही, आप देखिए और 15 दिसंबर को अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मतदान कीजिए। We always recommend to file our details. However, this should be necessary. We will make it necessary if I'll be elected as a president of the bar, and I ensure that we will make such affidavit in which the three wakalatnamas or the person who are practicing here in the court should give three wakalatnamas in the same. And they are supposed to give the detail of three cases in which they lastly appeared, so that the genuine voters should be there and the outside voters should not come forward for this. And the second is the members who became members, the advocate who became member of this bar within 1 year, that these should not be given the right to vote till the time the one year of the membership would be complete, so that this ensure that the genuine voting would take place and no outsider, no ungenuine and outstationed advocate would vote in the election. And a monthly subscription should be paid every month from ECS or their registered mobile numbers by Google Pay. This I ensure that this will be done. And the second is the concern is life insurance. The life insurance policy, I have already have words with two companies, that is United India and Tata AIG, who stated that they would provide the life insurance that is term plan and group accidental policy. There are two plans. These two plans would be in operation once the meeting would be done with them. That is under process, and it would take minimum three months to implement the same. And the first issue which have been given to me, this I will resolve. I undertake and I promise to resolve within 1 month, please. And the third issue, that is the second issue, that the group accidental policy. There are number of policies given by the insurance company
Out of them, there is one group accidental policy and the other is term policy. The term policy states that the death, if the death due to any reason, then the member would get 5 lakh rupees from the company, insurance company. And I also promised to appoint one member of the committee, member of the executive committee, or the senior member of the bar, or the young member, as decided by the executive body or the senior members of the bar, to communicate with the PGI team or the government hospitals in order to avoid any complication in their process to deal with the hospitals. Then the third one is the complaints. What method I can adopt so that members can lodge register their complaints. So I'll put the complaint box over outside the office, main office of the bar, and everyone is free to move the complaint in the complaint box, and this complaint will be resolved within 7 days of the moving of the complaint. And or the second thing is that they can move the complaint to the front office, which can be taken care of, and diary number would be given to them. And if any complaint is critical, then that would be referred to the house, or full house, general meeting, general body meeting, to decide the same. So this, then the fourth issue is with regard to the canteen and washrooms and sanitization. That canteens, as we already know, there is a passage from the canteen from the chamber building towards the canteen, and this passage is not open right now. So earlier executive had made effort to open the same. However, this was not open till time. So I assure and I promise that this passage would be open, and everyone would get the passage from the chamber block to the canteen as well. And the canteen, which is not working right now in a proper manner, and the quality of food is not provided right now, that would be provided. I ensure that. Because no one from the outside is coming forward, because there was no connectivity earlier to the canteen from the chamber building, and they have the person who are opening the canteen, they have no income. So now this would open, and we provide the time. We call the open tenders for the same, and we will do the same. And the fifth one is that, and the fourth one, hygiene is that the washrooms are so dirty, as we already know. I ensure that we will reconstruct these washrooms, and we will generate revenue from the MP fund and other sources as well in the bar, and will redo the washrooms, and will provide the proper hygiene for the females and the male members of the bar as well. And the fifth is that the proper uniform will be provided to the PNs and sweepers who are engaged. Namaskar, I, Sarabjit Kaur, giving my brief introduction. Everybody knows me very well. I am a postgraduate from Punjab University, and been member of this bar since 1996. It's been more than 27 years I am associated with this bar. I have been given some few issues have been raised before me, and which I am going to answer the same. One, that how will I stop the outstationed and ungenuine advocates should not participate in the election process? देखो पहला साड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ਅਸੀਂ आउटस्टेशन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਡੀ the thing is ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ with the passage of time grow ਹੋ ਗਿਆ, and number of members have joined. This family is such a huge family of around 5600 members. ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। Outstation members ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, we cannot stop them appearing before the courts, but ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ਦੀ
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਅਰਲੀ 5 ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਾਇਲਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਮਨੀ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪਾਕਟ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਿੰਗ ਲਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਬਲਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, that will be discussed with the members of the bar in the general house, and we will take the decision what will be the premiums that their schemes will be telling and how that will be floated with the assurance of the bar ही ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ with the consensus of the bar members। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੌਜ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਫ ਆਈ ਬੀ ਗਿਵਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਡੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਡਰੈਸਲਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਈਵਨ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੇਮ ਵੈਰੀ ਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਡ ਇਨਟੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕੱਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਦ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ, ਟੂ ਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर 24/7 ਟੂ ਦਿਸ ਮੰਥ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਿ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਨ the immediate effect of within 24 hours। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ,
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਂਟੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਨ ਕਲੀਨਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫॉर द sake of the वे मैं कहा कि कैंटीन कंसर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हाँ प्रेजेंट एग्जैक्टिव दे जिन्हों ने कनैक्टिविटी जी साडी चैंबर कॉम्पलैक्स की सर्विस ब्लॉक के नाल कराई और जी कि साडी डायरैक्ट कैंटीन के असैस देगी सानू। मेरा ये है कि इफ आई बी गिवन चांस इमीडिएटली विद इन अ डे और सो दैट डोर शुड बी ओपन फ्रॉम द सर्विस ब्लॉक साइड एंड द कैंटीन विच जी साडी कैंटीन बंद पई है पिछले किन्ने समय तो, और उत्थे ही एक साडे कोल सिटिंग प्रॉपर सिटिंग स्पेस है जिथे विच साडे वकील बैठ के अपने क्लाइंट्स नाल भी गल कर सकते हैं। अदरवाइज भी आपां वकील साहबान आपां भी अपने फ्रेंड सर्कल आराम नाल ईजीली बैठ सकीए। इमीडिएटली उन्होंने ऑपरेशनल किया जाऊगा और जिहड़ी कि एक बेस्ट ऑप्शन दी जाऊगी थोनों बेस्ट कैंटीन होगी जिथे असीं कहीए कि असीं भी भाई साडा स्टैंडर्ड भी हाई कोर्ट वाली कैंटीन तो वधिया होगा। जिहड़ा कि साडा एग्जिस्टिंग कैंटीन्स है ये एश्योर कराया जाता है कि एग्जैक्टिव अपने लैवल पे रेगुलर बेसिस पे चैक एंड बैलेंसिस रखूगी किदां दी कैंटीन दे विच फूड क्वालिटी है, किवें दी हाइजीन मेनटेन हो रही है, सो दैट साडी हैल्थ नाल कोई खिलवाड़ ना होवे। मैंबर्स एंड मैं जर्नल हाउस दे विच आई विल बी द वन हू विल बी आंसरेबल to I will be there to help and give every information with regard to what are the grievances, why they are not being fulfilled and ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹਣਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ दसांगी कि की मैं कर सकी हाँ की नहीं कर सकी हाँ। एंड टाइमली जर्नल हाउसिस कॉल किए जाएंगे जोड़े कि पीरियडिकली जिदा भी रिक्वायरमेंट होगी या मैंने कोई डिसीजन जो लगेगा कि वो सारी मेरी एग्जैक्टिव मीटिंग्स की भी डिटेलिंग जड़ी है डिस्प्ले होगी ऑन माई वेबसाइट ऑन DBA WhatsApp Telegram and will try to discuss it before the journal house periodically. And I rest assured that I will be, if I be given the chance, I will be available for the bar for 24/7. And मेरी जो मैं इस बार दे लई आज तक अपने जो भी मैं इस बार को दे सकी हाँ मैं always been there for my family and each and every advocate. You are accessible to me anytime. You can come and talk to me and whatever you have, I will be there to help you all. साढ़े अगले प्रधान जी शालिनी पांडे जी प्लीज एक बार फिर बेनती है कैंडीडेट्स में घट तो घट टाइम लिया जाए क्योंकि सबका समय कीमती है होर भी कैंडीडेट्स ने बोलना है। मेरे विचार में जो पहला क्वेश्चन था कि हमें आउट स्टेशन और अनजूनियर एडवोकेट्स का इसका एक लाइन में जवाब मैं देना चाहती हूँ कि कम से कम जिन लोगों की 5 केसेस की फाइलिंग है उनको ही राइट दिया जाए वोटिंग का। हमारी बार के अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं कि वोटिंग राइट्स को नीचे होना चाहिए। इंश्योरेंस के मुद्दे में मैं थोड़ा बाद में बात करूँगी क्योंकि इसके लिए मैंने प्रैक्टिकली काफ़ी वर्क किया है। दूसरा था कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए जहाँ पर कोई कंप्लेंट होती है जो उसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए टू डील विद द कंप्लेंट। और अगर कोई कॉम्प्लिकेबल ऑफेंस सामने आता है यहाँ पर तो उसके लिए पुलिस की मदद होनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। मुझे पता लगा जब पिछले 1.5 साल से जब से पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर कैंटीन्स है यहाँ पर अलग अलग। आपने कभी शायद ध्यान दिया होगा कि शायद नहीं दिया होगा कि पानी कहाँ का यूज होता है यहाँ खाना बनाते हैं, क्या उनके लिए अलग से टैप्स है? टॉयलेट वाटर शायद किसी का मेरे को अभी किसी ने बताया ये चीज़ कि टॉयलेट वाटर यूज होता है, हम इसको खा रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है उसमें एक स्टेज आती है रिफॉर्मेशन की, शायद ये वो स्टेज है। यहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, चैम्बर्स बन चुके हैं, पार्किंग बन चुकी है, लेकिन शायद मेरे जैसे लोगों का आना इस पॉलिटिक्स के अंदर
शायद कोई इंफॉर्मेशन के लिए कोई वजह होगी जो मैं आई हूँ। तो ये बड़े दुख की बात लगी मुझे कि पानी टॉयलेट का यूज़ हो रहा है और हम लोग उसको खा रहे हैं इतने सालों से। मैं ये नहीं कहती कि जो सरकारें पहले आई हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, जरूर किया होगा तभी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसमें थोड़े से सुधारों की जरूरत है। थोड़े से सुधार आ जाए तो ये और बेटर हो सकता है। लेस रेट पे कैंटीन होनी चाहिए। खाना बहुत महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन यहाँ पर। 100 रुपये का, 60 रुपये से लेकर 100 रुपये का, उससे ऊपर मतलब हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मैंने और जगह देखा कैंटीन बड़े सस्ते दामों पर खाना मिल रहा है सबको, लेकिन हमारी कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये मैं चाहूँगी कि सस्ते दामों पर खाना मिलेगा। रही बात इंश्योरेंस की, जब इंश्योरेंस के बारे में मैंने बात की तो इंश्योरेंस कंपनी से बिल्कुल मना कर दिया, कहते हैं एडवोकेट्स के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। ग्रुप इंश्योरेंस की तो बात ही नहीं थी, क्यों नहीं है, कहते हैं एडवोकेट्स का हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने काफ़ी वर्कआउट किया, कई और मना किया, कुछ किया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्री हो गई। अगली पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट की है, जिस सब तो पहले मैं श्री चंदन शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। छोटी जी होर बेनती है कि घट तो घट टाइम लिया जाए क्योंकि सबका समय कीमती है, प्लीज। A very good morning to all the respected members of BBA Chandigarh. I am Chandan Sharma and I am contesting for the post of Vice President. Earlier I was elected as Treasurer and during that tenure I have worked with honesty and dedication. During my tenure as Treasurer, 2 memorandum of understanding was signed with 2 different private hospitals and they agreed to treat the advocates on the private on government fixed rates. आपको सिर्फ वहाँ पे जाके डीबीए का कार्ड दिखाना है और वो आपको एज ए जो गवर्नमेंट फिक्स रेट है उस पर ट्रीटमेंट देंगे। गुरदेव सिंह जी को प्रार्थना करूँगा कि ਇੱਥੇ ਆਉਣ, अपने विचार साझे करें। साहब, सारे मेरे सीनियर एडवोकेट, मेरे कलीग्स, मेरे छोटे भैन भरा, सबनों मेरे वालों सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं पहला भी यही लवाया सी जो तुसीं मैनूं बड़ी मेजोरिटी के नाल जिताया, ये 2 नारे लाए सी, मैं अज भी कायम हाँ। मैं लाइब्रेरी सैकटरी पिछले 2 साल में एग्जैक्टिव का मैंबर रहा। साढ़े पिछले जो कपल साहब से या चौहान साहब से इन्होंने मेरी ड्यूटी लाती सैनिटेशन का समान लियाऊँगी। उसके बाद जब मैं लाइब्रेरी सैकटरी बन गया फिर प्रधान जी कहते भी तू ही कंटिन्यू करना, ये काम तुहाडे कोल ही रहना है, और मैं हाले तक उन्होंने बखूबी नाल निभा रहा है। कोई किसी किस्म की घपड़ेबाजी नहीं होने दी। लाइब्रेरी के गया मैं अपने मूँहों कुछ नहीं कहना, शायद तुसीं आप जानते होवोगे। थोड़ा जेडे है जी कि पहला नंबर है कि हाउ शुड आई स्टॉप द आउटस्टेशन अनजेन्यून एडवोकेट। बार कौंसल का जो फार्म है वो ऑलरेडी साढ़े कोल असीं भर के दे रहे हैं। बार कौंसल ने पहला ही इस पर अपना सोचा होया, असीं उसनूं जो भी बार कौंसल डिसीजन देगी असीं फुल चढ़ावांगे। नंबर 2, जो भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मेरे कलीग ने दसिया, मैं तो वाइस प्रेजिडेंट हाँ, जो प्रेजिडेंट तुहानूं चारे दस के गए ने भी असीं आह कुछ करांगे, मैं तो चार्जिंग ला देना है कि भी जल्दी करो। 2-4 चार्जिंग मैं पॉइंट लाते तो हुण मैं लाई जाना। जेड़ा कंप्लेंट बॉक्स असीं लवाउणा है, कंप्लेंट बॉक्स भी लग जाना चाहिए कि ऑनलाइन भी कंप्लेंट असीं सील करांगे। ऑनलाइन भी कंप्लेंट असीं एक नंबर से रिसीव करांगे, जिहड़ा फ्रंट ऑफिस दे विच नंबर होएगा
ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਵੀਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਕੀਪ ਆਫ ਈਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਊਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦੇਖ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਚਮਕਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਬਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਾਥਰੂਮ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਹਾਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਲਾ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਣ ਦਵਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। थैंक यू वेरी मच। पहला उनका जो मुद्दा था अनजर्मन एडवोकेट जो यहाँ पर वोटिंग देते हैं, सभी ने अपने मुद्दे डिस्कस करे, तो मैं उसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड करूँगा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अपने ट्राई सिटीज के अंदर इवन मोहाली एंड पंचकूला में आप देखते हैं कि उनके पास लोकल एडवोकेट्स की भी रिक्वायरमेंट है। आपने अगर कोई भी केस फाइल करना है तो वो लोकल एडवोकेट्स के लिए आपको कंपेयर करते हैं, तो हमारे वो चंडीगढ़ में लैक करते हैं वो चीज़। जैसे भी हाई कोर्ट के पैटर्न पे आप देख रहे हो कि उनको एक सेपरेट आईडी इशू होता है, वो आईडी से ही आप केस फाइल कर सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे हम यहाँ भी पूरी 100% ट्राई करेंगे कि उसी पैटर्न पे यहाँ पे फाइलिंग हो केसेस की, ताकि जो ये समस्या है अनजर्मन एडवोकेट की वो वैसे ही कम हो जाए। आपके पास सेपरेट आईडी होगी, आप उसी से ही केस फाइल करेंगे। अगर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, फॉर सीट्स फॉर यंग एडवोकेट, एज यू नो यंग एडवोकेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। उनको बड़ा इनसिक्योर फील होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है वो कहाँ जाकर उसको अटेंड करे। चलो अभी ये समस्या है, हमारे पास अभी कोई किसी तरह का भी कोई अभी स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे यंग एडवोकेट को बिठाया जाए। तो इसके लिए हम एक कॉमन कंसल्टेशन रूम के बारे में विचार कर रहे हैं। कोई भी यंग एडवोकेट आए उस कॉमन कंसल्टेशन रूम के अंदर बैठे और अपने क्लाइंट को अटेंड करें। उसके लिए हम एक नॉमिनल सी फीस रखेंगे और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो पीएम है वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे टू प्रोवाइड फैसिलिटी। किस तरह कोई पानी है चाहे वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किसी भी एडवोकेट को ऐसा न लगे कि मेरे पास चैम्बर नहीं है। तो उसके लिए हमने जगह मार्क कर दी है, वहाँ पे कॉमन कंसल्टेशन रूम बनाया जाएगा और यंग एडवोकेट्स के लिए। हमने इसके लिए पहले भी ट्राई की थी, बट ड्यू टू कोरोना सेशन हम उसमें थे, बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी हमारे लिए। मैं और मेरे प्रेसिडेंट श्री भासिंग स्वाद जी थे उस टाइम मेरे साथ। हमने बहुत ट्राई की, हमने इस सामने की जो 2 शॉप्स हैं इस पर ट्राई भी की काफ़ी, बट वो जो कोरोना का पीरियड है एज भी सभी जानते हैं कि वो सभी ने किसी न किसी को खोया उसमें। तो वो टाइम हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि हमने कैसे बात को कंट्रोल करना है। हमने पूरे एफर्ट्स किए उसके लिए, जो हम कर सकते थे हमने इसके लिए बेस्ट किया। हमने न्यू सोफास भी इसके अंदर लेके आए हैं। एक हॉट वाटर कूलर था, हमारे यंग जो एडवोकेट थे सभी जो यहाँ बैठते थे उनके लिए हमने इंस्टॉल करवाया विद द हेल्प ऑफ बार मेंबर। और इधर से जब भी हम देखते थे पार्किंग के लिए इधर बीच में गाड़ी लगा देते थे, तो हमने यहाँ पे इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उसकी ग्लेजिंग लगवाई ताकि बीच में कोई व्हीकल ना आए, व्हीकल में सेपरेट रहे, ताकि किसी की इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस कोई फायर ब्रिगेड को आने का रास्ता हो तो हमने वहाँ सिंपल प्रोवाइड करवा दिया ताकि सभी को इजी एक्सेस हो सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब हमारे जो 4 हमें टॉपिक दिए गए थे, एक टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया सर रिगार्डिंग द अनजेन्युइन वोटिंग प्रैक्टिसेस।
अब रही बात ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो मेरे पास 2 कोटेशन मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, SBI बैंक से भी ले लिया और मैंने पोस्ट ऑफिस से भी ट्राई की थी। मिस्टर राकेश जी बैठते हैं वहाँ पे, उनसे मेरी बात हो चुकी है इस रिगार्डिंगली। उन्होंने मेरे को भी थोड़ा कहा है कि हमें थोड़ा टाइम दे, पोस्ट ऑफिस वाले ने हमें नहीं दी है पर SBI से हमने ले ली है। और जैसे भी कोई चीज़ फाइनलाइज होती है तो वह हम बात जनरल हाउस के सामने रखेंगे, जो जनरल हाउस अप्रूव करेगा हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम थी कि ग्रीवेंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, कोई भी कंप्लेंट आएंगी, हम ड्रॉप बॉक्स के अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी हम इसमें लेके आएंगे। जो हेल्पलाइन नंबर होगा अंडर द सुपरविजन होगा, एक ग्रीवेंस कमेटी होगी, वो ग्रीवेंस कमेटी के पास ही वो हेल्पलाइन नंबर होगा, वही इसको रिजॉल्व करेगी। और जो ग्रीवेंस कमेटी के पास जो टाइम लिमिट हम उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं विद इन 10 डेज के अंदर कोई भी कंप्लेंट होगी वो रिजॉल्व की जाएगी। अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी मेंबर ऑफ दिस बार। आई मेक श्योर दैट दिस विल बी डन विद फुल एफिशिएंसी। नंबर 2, आप कह रहे जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास यहाँ बहुत कम है। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हम एक प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जैसे हाई करूँगा सबका साथ और सबका विकास। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर विकास। हम वारी है सैक्रेटरीज की ਜਿਹੜੀ कि सब तो इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेजिडेंट के नाम होती है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर दीपन शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द माइक। दीपन जी। Very good afternoon to respected seniors, my colleagues, friends, and the entire team of electoral committee, जिन्होंने बड़े एफर्ट्स करके EVM को पॉसिबल किया एंड मोर ओवर इन्होंने मेरे लिए हमारे सबके लिए अच्छा सिंपल प्रोसीजर प्रिपेयर किया। सर हमें एजेंडा कल मिला, जब मुझे मिला तो मैं तो साइकिल से मैं तो ब्लैंक हो गया कि ये एजेंडे में जो है टॉपिक्स बहुत सीरियस है, एक इंडिविजुअल के लिए मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है करना। और मैं तो आप में एक मेंबर हूँ, आई एम नॉट अ सेक्रेटरी कैंडिडेट, बट सेक्रेटरी खुद भी ये कुछ मेरे को नहीं लगता कर सकता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी के लिए वो नहीं है। अब सर मुझे क्या याद आया कि भी ऐसे कुछ हम पेपर्स में देखते होते थे जब हम कॉलेजेस में थे, तो बहुत बेस्ट पॉसिबल हम करते थे कि हम एडवाइस देते थे जिसको कुछ आता है कि हमें उनको नहीं आ रहा है इसमें। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जो बार है हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दैट इज पावर, ये पावर जनरेट कहाँ से हुई? एक पेड़ के नीचे कुछ मेंबर्स ने टेबल और कुर्सियां लगाई और इस बार एसोसिएशन को ऑर्गेनाइज किया, बनाया, रजिस्टर करवाया और आज ये 5,000 प्लस के मेंबर्स की बार है। और उनसे बेस्ट पॉसिबल सोच मेरे लिए कोई नहीं है पता करने का कि ये जो प्रॉब्लम हम सबकी ये कैसे हम सॉल्व करें। तो यस, वो मेंबर्स इनमें से कुछ आज भी फाउंडर मेंबर्स ऑफ द बार हमारे बीच हैं और बड़े हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम उनको एडवाइस देकर उन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन जिन मेंबर्स की वजह से, जिन प्रेसिडेंट्स की वजह से हमें ये चैम्बर्स अलाउड हुए और इतने बड़े महल जैसे मंदिर हमारे मध्य में हमारे चैम्बर्स मेंटेन हो रहे हैं, इसमें किसी की कोई नालायकी नहीं है कि किसी भी बार एसोसिएशन की किसी भी एग्जेक्टिव ने काम नहीं किया, सबने काम किया है, भरपूर काम किया है और मैं उनको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी को मेंटेन हो रही है बिल्डिंग। कमियाँ रह जाती है सर, हर उसमें एग्जेक्टिव में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, मेरे में भी हो सकता है कुछ कमी रह जाए आगे जाके अगर मैं अपनी तरफ से चूज होकर आगे फॉलो रहता हूँ। बट कोशिश यही होगी कि जितने ज्यादा हम मेंबर्स को अपने साथ रख के उनकी ग्रीवेंस से सॉल्व कर सके, दैट वुड बी द ओनली प्रायोरिटी आई विल। और सबसे दुख लगा सर पहला पॉइंट देख के आगे आपके पीछे जो मुझे लेटर आई है, आउटस्टेशन आर अनजेन्युइन एडवोकेट्स। मैं सर पर्सनली सेइंग मैं किसी को अनजेन्युइन और आउटसाइड आउटस्टेशन नहीं कह सकता। देयर आर मेंबर्स वेदर प्रैक्टिसिंग जैसे कम प्रैक्टिस चल रही है, मैं ये कोशिश नहीं कर सकता कि जो जिनको नहीं चाहिए, जिनको 5 वकालतनामे से नहीं आई सकती उनके पास वकालतनामे आए, काम आए, वो काम करे, प्राउड फील करे और घर जाते समय उन्हें लगे कि आप ही मैं एक अच्छे प्रोफेशनल एंटर किया।
मेरी प्रायोरिटी इतनी है कि एडवाइस लेना उनसे जिनका एक्सपीरियंस है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी तक किसी भी चेयर के अंदर नहीं आया, ना किसी चेयर को होल्ड किया। अब एडवाइस लेके फिर मैंने क्या करना है? एडवाइस लेके मेरा सिर्फ प्रेरोगेटिव इतना है, मैं सिर्फ आपका आई विल बी ड्यूटी गोइंग टू दिस पार्ट इफ आई एम इलेक्टेड एज सेक्रेटरी। सो एज पर माय ड्यूटी व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल द जनरल हाउस, अपना एजेंडा उनके पास रखूंगा कि ये सीनियर से, ये जूनियर लॉयर से, मेरे फर्स्ट लॉयर से ये चीजें डिफिकल्टीज हमें आई है, एंड इट इज अ जनरल बॉडी हु विल डिसाइड, इट इज यू हु इज रनिंग द बार। आपके पैसे से ही बात चल रही है, आपके पैसे से ही काम हो रहा है, और टचवुड बढ़िया होगा। अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो कम से कम कोई घपला, कोई खाने पीने का कोई ऐसा मामला नहीं होगा। हमारे यहाँ मेंबर्स करप्ट फ्री काम कर रहे हैं, एग्जेक्टिव करप्ट फ्री कर रही है, और अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो करप्ट फ्री ये गारंटी करता हूँ कि होगी। कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि काम कितनी जल्दी होगा, ये आपकी सपोर्ट होगी। तो आप वैसे तो हमारे पास सब हाईटेक सिस्टम है, एक व्हाट्सएप करूंगा तो जनरल हाउस 1 घंटे में काम हो जाएगा, इतने हमारे मेंबर्स में एप्लीकेशन है। तो मेरी सिर्फ रिस्पेक्ट इतनी है, रिक्वेस्ट इतनी है कि भाई मुझे अगर मौका देंगे, जो कि मैं सीख कर रहा हूँ इस बार आपके लिए, तो आई वोट फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस बार। थैंक यू सो मच। ये जो पोस्टली लड़ रहे हैं प्लीज respected bar members, good morning. I think this is for the first time that election team is providing us with the topic which is to be discussed, and the agendas are based on these topics only. So first topic was given as outstation and general advocate. So I have certain suggestions for this. First of all, if I am opted as a secretary of the bar, I will call it general house and pass and amend constitution so as to deposit the subscription fees quarterly, monthly, or at least quarterly by all the members. And after that, when we are supposed to submit the affidavit, so certain number of cases should be mentioned in that affidavit, whether they are wakalatnama or detail of that cases. And secondly, we can ask the bar council to prepare some AI software to prepare one centralized voter list of Punjab, Haryana or Chandigarh. So in this war, everybody have there is no meetings in the general house, so आम member ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ grievance put forward ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। So I am happy today ਕਿ by filing my nomination I am being here to say something with respect to the work to be done with the joint effort, not by a single man show. बिकॉज अगर आप ये कहेंगे कि आप मैं ये कर दूंगा, नंबर एजेंडा सर्कुलेट कर दूंगा, ये पेपर के बीच एजेंडा रह जाता, कदे भी किसी भी कैंडिडेट्स ने फुलफिल नहीं किया। नो डाउट दे हैव वर्क मोर देन दे कैन डू, क्योंकि टाइम इन्ना है, शॉर्ट टाइम है, 1 साल का टाइम होता है, तो उन्होंने अपना काम भी प्रोफैशनल वर्क भी करना है, तो अदरवाइज एग्जैक्टिव भी रोल करना है, तो अगले परसनल डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं कोई, तो उन्होंने को टाइम नहीं है। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तो सजेशन भी है, क्योंकि इस बार दे विच जो भी एग्जैक्टिव आई है उन्होंने एफर्ट्स की है, बट कदे भी जनरल हाउस दे विच उन्होंने या जनरल मैंबर ने कदे कन्वे नहीं किया कि असी ये एफर्ट्स कर रहे हैं, तो की जा रही है, तो कर चुकी है। सो डिफिकल्टीज इतनी है कि उन्होंने लिस्ट हैगी, लिस्ट इतों भी देती है, मेरे अदर फ्रेंड्स ने लिस्ट कैलकुलेट भी करती हैं, सर्कुलेट भी करती हैं, लेकिन ये सारिया लिस्ट एज पर माई ओपीनियन ये सर्कल के बीच ही रह जाती है, क्योंकि कोई जनरल हाउस नहीं होंगे, तो मैंबर की कोई गल नहीं सुनी जाती है, तो मैंबर का ग्रीवेंस सुनिया जाऊगा तो तदे सॉल्व होएगा। तो मेरी एक ही प्रायोरिटी होएगी, अगर ये बार मैंने चांस दी है
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਪਰ योर डिमांड जब भी कहोगे जनरल हाउस बुलाया जाएगा। एग्जेक्टिव की मीटिंग भी रेगुलर होया करेगी, चाहे महीने 2 बार क्यों नहीं की जाए, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जनरल हाउस जो है वो तो सर वैसे तो जो मैनू इलेक्ट करोगे मौका दोगे, आई नीड वन चांस बिकॉज आई एम हियर सिंस 90 एंड जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो मेरे वर्किंग स्टाइल में भी जानते हैं तो मेरी जेन्युइननेस है कि जेन्युइननेस नहीं है उहदे रिगार्डिंग भी मैंने सारे पहचानते हैं। मैं वोकल जरूर है तो मेरा किसी नाल कोई पर्सनल वो नहीं है। कोर्ट के विच देखो असी क्लाइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उत्थे इफ्स एंड बट्स सर हर एडवोकेट्स का राइट है वो होने हैं। सो लीव सेट असाइड ऑल दिस थिंग्स। नाउ आई एम कमिंग टू द एजेंडा। फर्स्ट एजेंडा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू दिस आरओ टीम, इवन के प्रीवियस आरओ मिस्टर शर्मा एज वेल हु डिड समथिंग टू हैव ए फेयर एंड जेन्युइन इलेक्शन एंड टिल टाइम आई थिंक इट वुड बी ए बेटर इलेक्शन एंड देयर विल बी नो अनफेयरनेस इन दिस बिकॉज इधर इन्नी की एफर्ट करती है कि वोटर लिस्ट से भी फोटो लगाती है, कुछ इन्होंने बाकी आईडी प्रूफ भी मांग ले हैं तो उन्होंने जोड़ा है कि जो आप एलीगेशन आते सी बोगस वोटिंग है, इलैक्शन टीम ने हेराफेरी करती है, वो हो गया वो हो गया वो एलीगेशन इस बार तो देखो चांसेस है नहीं है, बट आप इसकी गारंटी भी नहीं दे सकते किसी की क्योंकि हर बंदे ने अपनी एफर्ट्स करनी है तो हर बंदे का अपना रोल है। सो लेकिन मैं सर एक चीज़ पर जरूर आवागा कि जोड़ा इन्होंने फर्स्ट सानू एक एजेंडा पॉइंट आउट किया है। देखो जी इन्होंने एजेंडे से मैं कुछ हद तक इस करके सहमत है क्योंकि आप है तो सारे एडवोकेट्स है तो आप एडवोकेट्स को बाहर तो नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिस ना करे, लेकिन सर कुछ यह डिफिकल्टी आई हैं जो अपेरेंट है साढ़े एडवोकेट्स भरा स्टेट ऑफिस भी काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी कर रहे हैं, खरड़ बार्च भी कर रहे हैं, मोहाली भी कर रहे हैं, संगरूर भी कर रहे हैं, कुटीडा है तो सारे एडवोकेट ब्रदर्स है। लेकिन उधर सिर्फ एक ही डिफिकल्टी आ रही है कि इलैक्शन वाले दिन थोड़ी सी ये चीज़ आती है कि जेडे एडवोकेट्स मतलब कदे कोर्ट च प्राइमरी इंटरव्यू नहीं किए, उन्होंने कोई अपीयरेंस नहीं हैगी तो वो आके वोट पा के अपना प्रधान ते सैकटरी सिलेक्ट करते हैं तो उहदे की होंदा है कि जिन्ने असी प्रैक्टिकल एडवोकेट्स है उन्होंने जी डिफिकल्टीज है बिफोर द बेंच एंड बिफोर द बार वो सर कोई सुनवाई नहीं होंगी है। मैं सर एक एग्जाम्पल दिंदा, आज की डेट च अगर कोई एप्लीकेशन भी फाइल हो जाती है तो सर उन्होंने साढ़े ऑनरेबल जजिस मतलब 3-3 साल तक पेंडिंग रखते हैं तो सर वह क्यों साड़ी एग्जीक्यूटिव ने आज दिन तक उस चीज़ को कदे हाईलाइट किया एडमिनिस्ट्रेटिव जज को या अपने किसी भी अथॉरिटी को कि जी ये एप्लीकेशन है इन्हों की कोई टाइम लिमिट होए तो क्योंकि वो की है कि आप ईवन के क्लाइंट्स को भी चाहे मेरी साइड है चाहे अदर साइड है उन्होंने सर टाइमली जोड़ा है कि रिजल्ट नहीं मिलता। सो मेरी अगर मैंने अगर कोई चांस मिलता है दिस टाइम तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन कि मैं जनरल हाउस ही डिसीजन लेके एग्जेक्टिव डिसीजन लेके जिन्ने भी मेंबर्स के ग्रीवियंस है वो मैं पुट फॉरवर्ड करूंगा एंड उन्होंने नाल ले जाके ईवन के चाहे हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज को जाना पै जाए चाहे चीफ जस्टिस को जाना पै गए तो आप जनाब वो सारे सॉल्व करेंगे। बाकी सर मैं ज़्यादा इस करके टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि माई वर्दी ऑल प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट इन्होंने एजेंडे भी सर्कुलेट करते हैं, एजेंडा आइटम्स भी देती हैं, बट इन्होंने सर ये सिंगल मैन शो तो है नहीं जी, इट इज़ ए जॉइंट एफर्ट और जॉइंट एफर्ट नॉट ओनली द एग्जेक्टिव, इट इज़ द एफर्ट ऑफ आवर ऑल रिस्पेक्टेबल सीनियर जूनियर्स एंड यंग लॉयर्स उन्होंने एफर्ट्स नाल ही सॉल्व होंगे। एग्जेक्टिव कदे कली सॉल्व नहीं कर सकती, बट साढ़े च ड्राबैक की है कि असी जो मैंबर हैं इलैक्शन कैंडिडेट को जिता के भुल जाते हैं, असी पूरा साल उन्होंने कदे भी किसी काम के रिगार्डिंग पूछते नहीं है कि तुसी ये एजेंडा आइटम सर्कुलेट कीतियां सीगियां ते क्या तुसी इहदे ते वर्क किया ते जनरल हाउस या किसी एग्जेक्टिव की कोई भी मीटिंग है वो सर्कुलेट की है ताकि मैंबर्स उन्होंने डिसीजन रिगार्डिंग कोई पता चल सके। तो सर मेरी
ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ since 90 I am here regular practicing in the district court and I know even the difficulties of the bar members also with the bench also and other problems also कि ਜਿਹੜੀਆਂ sitting place है, पार्किंग प्रॉब्लम है, अपनी चैम्बर बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम है। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर किसी प्रीवियस एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव ने अपना कोई बाहर के वास्ते चैम्बर बिल्डिंग च वाटर का कनैक्शन अप्लाई किया है तो वो सर दस देंगे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि चैम्बर बिल्डिंग की सर्विस ब्लॉक की सारी जगह क्लीननेस की वाटर का प्रोविजन का विदिन 10 डेज आई श्योर यू अगर उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया कनैक्शन तो वो मैं इंस्टॉल करवाऊंगा ताकि जी पानी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्लीननेस भी हो जाएगी। तो अदर प्रॉब्लम जी है सब तो बड़ी प्रॉब्लम हैगी बिकॉज ਜਿਹੜੇ फर्स्ट जनरेशन लाइयर है क्योंकि उन्होंने वास्ते तो हर जगह ही डिफिकल्टी है, ना तो उन्होंने कोई प्रॉपर सीनियर मिलता जी, ना उन्होंने कोई प्रॉपर सिटिंग प्लेस मिलता है। तो अगर उन्होंने सिटिंग प्लेस यंग लाइयर की दी वो भी सर ज्वाइंट एफर्ट है, वो भी वन मैन शो नहीं हैगा, वो भी विद द इंटायर एग्जेक्टिव अगर मैं भी नहीं होंदा ਜਿਹੜੀ एग्जेक्टिव आंदी है बाहर उन्होंने रिप्रेजेंट करती है, बाहर भेजती है, उन्होंने मेरे वालों भी अपील है कि वो उन्होंने ग्रीवेंस में ਜਿਹੜੇ यंग लाइयर है वो सब तो पहले कंसीडर करन विद रिस्पेक्ट टू सीटिंग विद देयर सीटिंग प्लेस। साढ़े को स्पेसिस हैगे लेकिन सर ਜਿਹੜੀ एग्जेक्टिव है ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिमांड के मुताबिक वर्क नहीं करते हैं। सो काइंडली वोट मी and support me and give me chance this time because I have the experience with respect to every aspect and every difficulty. So kindly other matter has already been discussed by my worthy all respected candidates. So kindly I will be follow to that also in case given the chance to me. Thank you very much to all. ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਸ ਹੁਣ ਬਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ और ट्रेजरर एग्जैक्टिव ਮੈਂਬਰਸ पहले ऑलरेडी इलैक्ट हो चुके हैं, उन्होंने उसी डिकलेयर करता है। उन्होंने तो सिर्फ आर ओ टीम यही आस करती है, सारे मैंबरस भी जोड़े अपनी बार दे आस करते वो भी आने वाली एग्जैक्टिव जी हैगी उन्होंने मिल के चलणगे तो बार के वेलफेयर वास्ते काम करनगे। हुण मैं जॉइंट सैकटरी वास्ते पूजा दीवान जी को बेनती करूँगा डास पे आन प्लीज़ और कन्फाइंड लफ्जा जी सारा कुछ खत्म कर प्लीज़। Good afternoon, respected senior members and all my colleagues. मैं पूजा दीवान 2018 से इस बार की मेंबर हूँ और इस साल DBA चंडीगढ़ के इलेक्शंस में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। इसलिए आप सभी सीनियर्स की, सभी कोलीग्स की और पूरे बार मेंबर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आना चाहती हूँ और बार के लिए काम करना चाहती हूँ। जैसे कि इलेक्शन कमेटी ने सभी कैंडिडेट्स को एक क्वेश्चनेयर प्रोवाइड किया है, अब आगे मैं उसके आंसर्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट मैं आउटस्टेशन और अनजेन्युइन एडवोकेट्स के बारे में बात करूँगी। जैसे कि यहाँ हर साल एडवोकेट कमेटी बनती है और इलेक्शन से पहले सभी एडवोकेट से एफिडेविट्स लिए जाते हैं कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अपना वोट कास्ट करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब एफिडेविट्स लिए जाते हैं तो उनके साथ पर एडवोकेट से उनके केसेस ऑफ लिस्ट भी ली जाए जिनमें कम से कम 5 से 6 केसेस